सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रमनजीत कौर है। आज का साडा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर दी ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 2। जिमें कि ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 3 ਅਪਰੋਚਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਡੀਨਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵੀਲਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਈਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਟਸਥਾ ਵਕਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਟਸਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਆਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, फर्स्ट सैकेंड थर्ड भी इस गुड तो मैंने फर्स्ट यूनिटी हो रही है, इस तो सैकेंड, इस तो थर्ड कहते ऐसा आप कंपेयर करके यूटिलिटी ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਦ ਕਦੇ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤਟਸਥਾ ਵੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਟੂ ਔਰਿਜਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ A B C D ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं अपनी लिमिटेड इनकम के नाल डिफरेंट गुड्स यूज करदा। फॉर एग्जांपल मैं 2 गुड्स यूज करदा, ऑरेंज एंड एप्पल। ते ऑरेंज ते एप्पल दे मैं कॉम्बिनेशंस मींस उनकी क्वांटिटी नु चूज करूंगा कि मैं ऑरेंज ज्यादा लेने ने या एप्पल ज्यादा लेने ने। कहंदे डिफरेंट जेडे कॉम्बिनेशंस ने मैं ऑरेंज ते एप्पल ते लेना है एक आईसी कप ते जितों सानू सेम सैटिस्फैक्शन जेडी ओ की हुंदी आ मिलदी आ। ते आईसी कप दे विच ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कप 5 प्रॉपर्टीज ਸੀਗੀਆਂ आईसी कप ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। इंडिफरेंस मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਆਈਸੀ ਕਰਵਸ ਗਿਵ ਹਾਇਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਗਿਵਸ ਲੋਅਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿ ਵਾਈ ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ में मैक्सिमम रहे मिनिमम ना होवे। ठीक है, तो ये लॉ सी जरा अप्लाई हुंदा सी एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ भी अपने देखिया सी जरा अप्लाई हुंदा सी। ते उस तो बाद आपां देखते हैं कि जिहड़ी आईसी कर्व है ये किद्दां चेंज हुंदी है, डिफरेंस कर्व चेंज किद्दां हुंदी है ते इहदे की रीजनस ने जदों अपनी इंडिफरेंस कर्व किस चीज़ ते डिपेंड करदी है आईसी कर्व अपनी। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਰੇਖਾ, ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਜਟ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਥਰੂ ਦ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਥਰੂ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ
लाइन कंज्यूमर पॉसिबिलिटी लाइन मीन्स कंज्यूमर कितों तक गुड्स ਨੂੰ कंज्यूम कर सकता है लाइन ऑफ एंटेनेबल कॉम्बिनेशंस कि किस तरह वो एक्स एंड बाई गुड्स ਤੇ डिफरेंट गुड्स ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ the combination of goods that can be purchased if the entire money income is spent ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਗੂਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੌਦਰਿਕ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ 20,000 है तो 20,000 में रखिए दिस इज अ बजट लाइन और प्राइस लाइन कि 20,000 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਏ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਮ ਆਫ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ 4 ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ 4 ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ 2 ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਪਲ ਤੇ ऑरेंज ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ऑरेंज ਕੀ ਹੈ 0.50 ਪੈਸੇ ਨੇ एंड एप्पल का प्राइस 1 रुपीज़ है तब कहते की हो सकता है ये गिवन जी इनकम है 4 रुपीज़ के थ्रू ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਇਹ 8 ऑरेंज ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਐਪਲ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ इंडिफरेंस कर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 4 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ किया 5 रुपीज़ टोटल इनकम है तब वो किया अपने 5 रुपीज़ को किस चीज़ से खर्च करेगा कहते उन्हें बिस्किट बाय करने ने एक तो क्रीम बिस्किट है एक प्लेन बिस्किट है ओ एक्स ते क्रीम बिस्किट है एंड ओ बाय ते प्लेन बिस्किट है ते कंज्यूमर दा बजट लाइन की है एफ इज अ बजट लाइन और प्राइस लाइन की है ये बजट है कंज्यूमर्स दा जिस दे अंडर ही कहते किया ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 5 ਰੁਪੀਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਬਿਸਕਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 1 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 50 ਰੁਪੀਸ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ हाफ रुपीज है हाफ रुपीज प्लेन बिस्किट की प्राइस है एंड क्रीम बिस्किट्स की 1 रुपीज प्राइस है तब कहते हो 5 रुपीज के थ्रू की कर सकता जाता हो 10 प्लेन बिस्किट खरीद सकता ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 5 क्रीम बिस्किट खरीद सकता ठीक है ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ठीक है AF इज अ बजट लाइन A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਦ ਉਹ 10 रुपीज 10 ਬਿਸਕਿਟਸ ਤੇ ਹੀ अपनी जी टोटल 5 रुपीज ने स्पेंड कर रहा है इतने वो प्लेन बिस्किट की क्वांटिटी 10 ले रहा एंड क्रीम बिस्किट की 0 क्वांटिटी ले रहा अगर आप नीचे लिए एफ पॉइंट देखिए तो एफ पॉइंट अपने सारे रुपीज 5 रुपीज किस चीज़ से खर्च कर रहा है क्रीम बिस्किट स्पेंड कर रहा है वो क्रीम बिस्किट 5 पैकेट ले रहा प्लेन बिस्किट का 0 पैकेट ले रहा दिस इज द कॉम्बीनेशन ऑफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई एंड उस तो बाद अगर बी पॉइंट की गल करिए ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਰੁਪੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਰੁਪੀਸ ਮੀਨਸ 0.50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹ 4 into 0.50 पैसे तक की हो गया हो अपना जो 8 बिस्किट्स है वो बाय कर लेगा तो उस तो बाद कहते हो 8 बिस्किट्स प्लेन बिस्किट के पैकेट बाय करे बी पॉइंट एंड 1 रुपीस किस ते खर्च करे क्रीम बिस्किट से 4 रुपीस प्लेन बिस्किट्स थे एंड 8 क्वांटिटीज वो प्लेन बिस्किट दियां ते 1 रुपीस क्रीम बिस्किट ते 1 ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਆ
क्रीम बिस्किट का वो ले रहा है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 प्लेन बिस्किट एंड 1 क्रीम बिस्किट। इस तरह वो 5 रुपीज नो बी पॉइंट पे अपना की करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर वो सी पॉइंट ते है, ठीक है, सी पॉइंट ते वो किस तरह दोनों बिस्किट्स में चूज करेगा, वो 6 क्वांटिटीज ने जरिया वो प्लेन बिस्किट लमेगा, मींस 3 रुपीज वो प्लेन बिस्किट पे स्पेंड कर रहा है एंड 2 रुपीज वो क्रीम बिस्किट पे स्पेंड कर रहा है। एंड डी पॉइंट ते 4 पैकेट जरे नो प्लेन बिस्किट से, मींस 2 रुपीज प्लेन बिस्किट से एंड 3 रुपीज वो जरा है क्रीम बिस्किट पे स्पेंड कर रहा है। ई पॉइंट ते वो 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਾਈ ਕਰਿਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀਆ 1 ਰੁਪੀਸ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਿਸਕਿਟਸ ਤੇ ਐਂਡ 4 ਰੁਪੀਸ ਉਹ क्रीम बिस्किट से डिपेंड करे खर्च कर रहा। तो इतने किया जो अपने बजट लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स ने वो ए ते बी जी अपने एक्स एंड वाई गुड्स ने प्लेन बिस्किट एंड क्रीम बिस्किट इन्होंने डिफरेंट कॉम्बीनेशंस दिखा रहे हैं, जो अपने कंज्यूमर अपने बजट लाइन के प्राइस लाइन के अंडर ही की करता है, बाय करता है। अपनी टोटल 5 रुपीज इस तरह टू गुड्स से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। वो किस चीज़ से डिपेंड करता, वो गुड्स को मिलने वाली सैटिस्फैक्शन से डिपेंड करता है कि किस तरह जो कंज्यूमर है उसने अपना किस क्वांटिटी ते कितना जरा है प्राइस वो पे करना है, किस चीज़ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਕਰਨਾ है। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशंस कहते ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕॉम्बिनेशंस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ कीमत रेखा विच परिवर्तन। कहते जी अपनी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की होंगी आ, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ गुड एक्स नू जो आप प्राइस ऑफ गुड वाई नाल डिवाइड करांगे तो अपनी जी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो उस तो बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइस लाइन। कहते प्राइस लाइन दी प्रॉपर्टीज किवें ने, जिवें तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो कि प्राइस लाइन हैगी किद्दां दी आ। कहते इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन आ। ए एफ इज अ प्राइस लाइन, ठीक है, जो अपना बजट है, ठीक है, जिसदे आपां अंडर ही जो गुड्स ने आपां बाय कर सकते हैं। एंड इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, एक हुंदी है लेफ्ट राइट डाउनवर्ड हुंदी है, क्योंकि लिमिटेड इनकम है। टोटल 5 रुपीज ने, टोटल 5 रुपीज माई बजट लाइन प्राइस लाइन ते ओदे अंडर ही मैं डिफरेंट गुड्स नू चूज करना है, बाय करना है, तब ओदे लिए कहंदे की है वे 2 गुड्स की क्वांटिटी नू इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, तब मैनू एक दी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरे की क्वांटिटी नू की करना पैंदा है, डिक्रीज करना पैंदा। तब करके जी अपनी प्राइस ते बजट लाइन हुंदी है वो की हुंदी है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हुंदी है। इट्स स्लोप्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 गुड्स ऑरेंज एंड एप्पल्स माइनस प्राइस ऑफ गुड एप्पल डिवाइड बाय price of goods orange. Suppose 2 price line involve the same commodity price but represent the level of income, the 2 lines will be parallel. अगर कहते अपनी बजट लाइन प्राइस लाइन इंक्रीज हो जाती है, मतलब इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो न्यू बजट लाइन बनेगी, वो की बनेगी पैरेलल बनेगी इस बजट लाइन पे। तब कहते जी बजट लाइन है प्राइस लाइन है शिफ्ट भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। जिवें कि तुसीं हम डेली लाइफ के देखते हो कि अपना जो बजट है वो चेंज होता रहता है, अपनी सैलरी के भी इंक्रीमेंट लगता है, वेजिस के भी इंक्रीज होता है, तब कहते अपना बजट किया अप्स एंड डाउनस होता रहता है। तो इस तरह कहते बजट के भी चेंज होने ना अपनी जी प्राइस लाइन है बजट लाइन है वो भी की होएगा चेंज होएगा। देन आप देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन कि जी अपनी बजट रेखा है कीमत रेखा विच परिवर्तन के की रीजनस हो सकते हैं। कहते पोजीशंस एंड स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कहते जी प्राइस लाइन है बजट लाइन है कहते जी स्लोप है ये 2 फैक्टर्स से डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहते जो अपनी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तब कहते जी अपनी बजट की प्राइस लाइन है वो चेंज होती है। सैकेंड इज प्राइस ऑफ द 2 गुड्स दैट द कंज्यूमर वांट्स। कहते जी अपने 2 गुड्स ने जो उन्होंने प्राइस के विच चेंज हो जाए तब भी कहते जी अपनी बजट लाइन है वो चेंज होती है। प्राइस लाइन में चेंज ऑन अकाउंट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। तेरे देखते हैं तो चेंज बजट लाइन की प्राइस लाइन के विच किद्दां हुंदा है इनकम ते प्राइस दे थ्रू। द फर्स्ट इज आमदन विच परिवर्तन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कहते जो अपनी इनकम चेंज होंगी कंज्यूमर्स की तो जी अपनी बजट लाइन है तो प्राइस लाइन है की अफैक्ट पैंदा है। कहते इफ द प्राइसिस ऑफ द 2 गुड्स रिमेन अनचेंज, जो इनकम के चेंज होने प्राइस की बजट लाइन चेंज होंगी है तो ये थ्रू कहते जी अपनी
प्राइस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ then with an increase in income the price line will shift to the right ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਰਾਈਟਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ increase in income ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ decrease in income ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਮੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਔਨ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ OX ਅਕਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਡ X ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ OY ਤੇ ਗੁੱਡ Y ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ BA is the initial budget line ठीक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ two combinations ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ good X and good Y ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡ Y ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡ X ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ राइटवर्ड शिफ्ट होगी अपवर्ड शिफ्ट होगी न्यू बजट लाइन बनी तो पुरानी बजट लाइन दे पैरेलल शिफ्ट हुई है न्यू बजट लाइन इज V1 एंड A1 ये क्यों शिफ्ट हुई है राइटवर्ड क्योंकि मेरी इनकम दे विच इंक्रीज होया है कंज्यूमर दी इनकम बढ़ी है ठीक है तब कहते हुन की है जो न्यू बजट लाइन बनी V1 A1 तब मैं क्वांटिटीज भी ज्यादा बाय कर सकता मैं गुड Y दियां ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਤਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਗੁੱਡ X ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ A1 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ V2 ਐਂਡ A2 this is the new budget line जो income ਦੇ ਵਿੱਚ decrease ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ decrease ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ quantities ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ quantities ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ B quantity ਬਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡ Y ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ B2 ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ X ਗੁੱਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ A ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਹ A2 ਹੋਗੀ ठीक है जो इनकम दे विच डिक्रीज होएगा ता जड़ी अपनी बजट लाइन है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ते आपां X एंड Y गुड दे क्वांटिटीज भी कट परचेज कर सकते हैं जो इनकम दे विच इंक्रीज होएगा तद अपना बजट इंक्रीज होएगा राइटवर्ड बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी तद आपां जड़ी क्वांटिटीज ऑफ गुड X ते Y ने वो भी की कर सकते हैं ज्यादा परचेज कर सकते हैं दिस इज द फैक्ट ऑफ चेंजिंग इनकम ऑन द बजट लाइन इस तो बाद अपना कीमतां दे विच परिवर्तन कहंदे अ प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल प्राइसेस कहंदे जदों की हुंदा है चेंज हुंदा है प्राइसेस दे विच तां इस दे विच क्या टू गुड्स दे प्राइसेस दे विच चेंज दिखाया होया है कहंदे अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस कीमतां दे विच परिवर्तन दे नाल जदों बजट लाइन अपनी चेंज हुंदी आ एंड इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल मनी प्राइसेस विद मनी इनकम held constant shift the price line parallel to itself toward the origin when prices rise away from the origin when prices fall due to proportionate change in prices the position of the price line will change but slope of the price line will not change ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਹੇ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈसेस ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ X ਤੇ ਐਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ Y ਤੇ ऑरेंज ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ AB ਹੈ AB ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ AB ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ 8 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ऑरेंज ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਪਲ ਤੇ ऑरेंज ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈसेस ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈसेस ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ मतलब अपनी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी पहला आपा 5 रुपीस दे विच 8 क्वांटिटीज ऑरेंज बाय करदे सी 4 क्वांटिटीज एप्पल बाय करदे सी हुन ऑरेंज दा प्राइस भी घटिया एप्पल दा प्राइस भी घटिया ता दोनों दे प्राइस घटन दे नाल की है
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ बजट लाइन है ये राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो जी अपनी बजट लाइन है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जी अपनी बजट लाइन है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो ये देख सकते हो कि अपनी जो प्राइसेस डिक्रीज होए तो अपनी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई लेकिन इतने थोड़े लैफ्ट साइड ऑरेंज के साइड गलत लिखा हुआ है ऑरेंज की साइड जी 16 उत्थे 4 आएगा एंड उस बाद 8 की जगह पे अपना 12 आएगा ऊपर 4 की जगह पे 16 आ जाएगा तो ये थ्रू की अपनी परचेजिंग पावर इंक्रीज होएगी जिवें कि एप्पल वाली साइड लिखा हुआ है प्राइसिस घटन दे नाल अपनी बजट लाइन इंक्रीज होगी ठीक है एंड उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ it will have the same effect as the change in real income show when the income of the consumer was 4 then the price of apples was 1 and orange was 0.5 price line was AB when the prices of apple and orange by 50% and income of the remaining constant the price line will move upward to CD ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ बजट लाइन है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी ठीक है एंड राइस इन प्राइस जो प्राइसिस दे विच इंक्रीज है तो अपनी जी बजट लाइन है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि जो प्राइसिस इंक्रीज होए तो पहला मैं एप्पल दी कितनी क्वांटिटीज लै रही सी अपनिया 10 रुपीज़ के थ्रू मैं 5 एप्पल लै रही सी हुण प्राइसिस इंक्रीज हो गए मैं 10 के थ्रू सिर्फ 4 एप्पल लै रही हाँ तो मेरी क्वांटिटीज मीन बजट लाइन मेरी डाउनवर्ड जाएगी तकने प्राइसेस दे विच इंक्रीज दे नाल बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट होंदी है एंड प्राइसेस दे विच डिक्रीज दे नाल बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होंदी है जिवें कि तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो प्राइसेस दे विच एप्पल दे प्राइसेस दे विच इंक्रीज होने दे नाल पहला मैं एप्पल दियां 4 ਜਿਹੜੇ यूनिट्स लैंदी सी लेकिन हुण मैं 8 यूनिट्स लै सकदी हां उधर कहंदे पहला प्राइसेस जो ABC मैं 8 यूनिट लैंदी सी ऑरेंज दे हुण के ऊपर तुसीं 14 कर सकदे हो तां मैं 14 यूनिट लैंदी हां अगर प्राइसेस दे विच डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहे इट्स मींस मेरी परचेजिंग पावर घट रही है परचेजिंग पावर घट रही है मैं एप्पल ते जिहड़ी है अपना ऑरेंज हो गया हुण घट क्वांटिटीज मेरे को बाय होंगे क्योंकि मेरी बजट लाइन क्या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी दिस इज द इफेक्ट इन प्राइसेस ठीक है एंड उस तो बाद है अपना चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी कहते जो सिर्फ वन कमोडिटी के प्राइस के चेंज होता है पहले तो अपने देखा कि जो दोनों कमोडिटीज के प्राइस के चेंज होगा तो अपनी रियल इनकम इंक्रीज होती है दोनों कमोडिटी के आप ज़्यादा क्वांटिटीज को बाय कर सकते हैं राइट बट अपनी बजट लाइन शिफ्ट होती है अगर प्राइसिस इंक्रीज हो जाता लैफ्ट साइड होती है क्योंकि घट क्वांटिटीज बाय करेंगे हुण चेंज इन प्राइस ऑफ आइसक्रीम गुड एक्स कहते जो सिर्फ अपनी गुड एक्स के प्राइस के चेंज हो रहा है लेकिन जो गुड वाई का प्राइसिस है वो कॉन्सटेंट है वो कोई चेंज नहीं है सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज हो रहा है तो तुम देख सकते हो गुड एक्स की आइसक्रीम है ठीक है ओ एक्स अक्ष से गुड आइस एक्स दिखाई हुई है दैट इज द आइसक्रीम एंड ओ वाई अक्ष से चॉकलेट दिखाई हुई है दिस इज अ गुड वाई ठीक है एंड इनिशियल बजट लाइन की अपनी ए बी इज अ इनिशियल बजट लाइन ठीक है जिथे मैं ओ ए क्वांटिटीज चॉकलेट दियां ले रहा गुड बाय दियां एंड ओ बी क्वांटिटीज गुड एक्स मींस आइसक्रीम दियां ले रहा ते हुण की हो गया आइसक्रीम दी प्राइसेस दे विच डिक्रीज होया तां आइसक्रीम दी प्राइसेस दे विच डिक्रीज होण दे नाल जिहड़ी अपनी बजट लाइन है वो शिफ्ट होके ओ बी तो ओ बी 1 हो जाएगी क्योंकि हुण मैं वही प्राइसेस दे विच आइसक्रीम दी ज़्यादा क्वांटिटी लै सकता क्योंकि आइसक्रीम दी प्राइसेस की हो गया घट गई हुण मैं ओ बी तो क्वांटिटी बढ़ा के कितनी कर दी ओ बी 1 कर दी क्योंकि बजट लाइन मेरी एक्स एक्सिस से राइट वर्ड शिफ्ट हुई है क्योंकि एक्स गुड का प्राइस घटे एक्स गुड का प्राइस घट के कितना होगा कुछ भी कहते घट के हो गया अपनी क्वांटिटी जी परचेजिंग पावर एक्स की मेरी इंक्रीज होगी तो कहते एक्स एक्सिस से मेरी जी है एक्स गुड के प्राइस घटन के नाल जी बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर कहते आइसक्रीम का प्राइसिस बढ़ गया तो आइसक्रीम के प्राइसिस बढ़न के नाल मैं आइसक्रीम दी घट क्वांटिटीज बाई कर रहा लेकिन गुड बाई का प्राइस सेम है चॉकलेट का प्राइस सेम है
इत्थे मैं गुड वाई दी ए इकाई ही लवांगा, लेकिन मेरी गुड एक्स की इकाई घट के ओ बी तो ओ बी 2 हो जाएगी, क्योंकि वही प्राइसिस दे विच हुण मैं घट प्राइसिस घट आइसक्रीम बाय कर सकदा, क्योंकि मेरी जिहड़ी प्राइस है वो की होगी इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होने दे नाल एक्स गुड की प्राइस इंक्रीज होने दे नाल मेरी जिहड़ी बजट लाइन है ये एक्स गुड एक्स एक्सिस से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बी तो शिफ्ट होके बी 2 हो जाएगी। दिस इज द increase or decrease in the price of X food। कहते due to decrease in the price of ice cream अपनी जरी बजट लाइन है ए बी तो शिफ्ट होके ए बी 1 हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम जरी अपनी बजट लाइन है ए बी तो शिफ्ट हो जाके ए बी 2 हो जाएगी, जिहदे थ्रू एक्स फूड के मैं घट क्वांटिटीज नु की कर सकदा बाय कर सकदा। दिस इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम गुड एक्स। हुण किया जो कहते वाई गुड के प्राइस चेंज हो गए, ठीक है, एक्स गुड का प्राइस कांस्टेंट है, एक्स गुड के प्राइस के कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ओनली वाई गुड का प्राइस चेंज हो रहा है। एक्स गुड की है सेम आइसक्रीम है एंड वाई गुड की है वाई एक्सिस पे चॉकलेट है एंड गुड वाई है, ठीक है। मेरी इनिशियल बजट लाइन कितनी आ ए बी, दिस इज माई इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। हुण मान लो चॉकलेट का प्राइस घट गया, तो चॉकलेट का प्राइस घट गया तो मैं चॉकलेट दी घट वध क्वांटिटीज लै सकदा, मैं चॉकलेट की क्वांटिटीज ज्यादा ले सकता, तो जी मेरी बजट लाइन है परचेजिंग पावर है वो की होगी वाई एक्सिस से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं हुण चॉकलेट की ज्यादा क्वांटिटीज नो बाय कर सकता, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर रियल इनकम इंक्रीज हुई है। तब कहते बजट लाइन ए बी तो शिफ्ट होके A1 B हो जाएगी, ठीक है। प्राइसिस दे विच डिक्रीज होने दे नाल जो चॉकलेट गुड वाई की प्राइस इंक्रीज हुई तो मैं हुण वाई गुड की घट क्वांटिटी बाय कर सकता, क्योंकि प्राइसिस इंक्रीज होगी तो मेरा बजट भी किया बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो मेरी न्यू बजट लाइन किया ए टू बी, दिस इज अ न्यू बजट लाइन जो प्राइसिस दे विच इंक्रीज होने करके शिफ्ट हुई है। तब मैं इस डायग्राम देख सकता ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट की प्राइसिस डिक्रीज हुई है तो मेरी बजट लाइन ए बी तो शिफ्ट होके A1 B हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द चॉकलेट, जो प्राइस चॉकलेट की इंक्रीज हुई है तब मेरी बजट लाइन ए बी तो A2B ते शिफ्ट हो जाएगी, मींस मैं घट क्वांटिटीज ने जड़ियां वो वाई गुड दियां बाय कर सकता। दिस इज द इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ he should spend his limited income on the combination of different goods so that he may get maximum satisfaction। कहते when a consumer get maximum satisfaction out of his limited income he is said to be consumer equilibrium। कहते consumer equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ limited income ਦੇ ਨਾਲ maximum ਜਿਹੜੀ satisfaction ਆ ਉਹ gain ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ indifference curve ਦੇ through ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵਿਲ ਗਿਵ income and give prices purchase such a combination of goods and services which give him maximum satisfaction and he is not willing to make any change in it। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ प्रेजेंट बिहेवियर तो प्रेजेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स तो कोई भी तरह का चेंज नहीं चलता है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਤਟਸਥਤਾ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ इंडिफरेंस कर्व दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिया। सब तो पहला बेसिक असम्पशंस देखो प्राइस ऑफ द गुड्स आर कांस्टेंट, कहते प्राइसेस जो कांस्टेंट है कंज्यूमर्स दी इनकम आल्सो कांस्टेंट है, कंज्यूमर्स नो द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, कंज्यूमर्स नु सारे थिंग्स दे प्राइसेस दा पता है। कंज्यूमर्स कैन स्पेंड हिज इनकम ऑन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज दे विच कहते अपनी इनकम स्पेंड करता है combinations से। कंज्यूमर इज रैशनल एंड सो मैक्सिमम हिज सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द परचेज ऑफ टू गुड्स।
और रैशनल है, इस तरह अपनी लिमिटेड इनकम ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਫੇਅਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ a group of indifference curve कि ਜਿਹੜੀ higher indifference curve है gives higher satisfaction and perfect competition है in the market, large number of buyers ਤੇ sellers ने, homogeneous products ने, price same है, goods are divisible, goods ਨੂੰ डिवाइड ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है, छोटी छोटी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ goods ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। एंड कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते की कंडीशंस ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ ਤਟਸਥਤਾ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। एंड द सेकंड इज कीमत रेखा का ढाल तथा वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए है एंड वक्र रेखा मूल बिंदु के प्रति उनतोदर होनी चाहिए है। आप वन बाय वन देखांगे। सब तो पहले उपभोक्ता संतुलन दी मानतावां जिवें कि तुसीं देख चुके हो, विवेकपूर्ण व्यवहार, कर्मवाचक उपभोग, उपभोक्ता की आमदन स्थिर रहती है, वस्तु की कीमत नहीं बदलती, उपभोक्ता नूं बाजार का पुनर्ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है। The conditions of consumer equilibrium first है कीमत रेखा की कंडीशंस ने, बजट लाइन सानू पता है, इंडिफरेंस कर्व सानू पता है जो डिफरेंट टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस दसदी है, इंडिफरेंस कर्व जितो सानू इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलदी है। एंड कीमत रेखा कहंदे फर्स्ट तटस्थ वक्र दी स्पर्श रेखा होनी चाहिए है, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। कहते उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति विच हुंदा है जदों कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र की ढलान के बराबर हुंदा है, मतलब उन्होंने टच करता है कीमत रेखा ते जिहड़ी अपनी आईसी कर्व है एक दूसरे नूं, जिवें कि तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो। कहते प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, AB इज द प्राइस लाइन, ठीक है। इतने प्राइस लाइन जो ब्लू कलर दी है अपने को, ठीक है। एंड कहते अ कंज्यूमर कैन बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस, इतने कहते कोई भी कॉम्बिनेशंस चूज कर सकता है। तो उस तो बाद कहते किया एप्पल एंड ऑरेंज मींस गुड एक्स ते गुड बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ने, तब तुम इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो। ओ एक्स ते गुड एक्स लिखी हुई है, ओ वाई ते गुड वाई लिखी हुई है। इतने 3 आईसी कर्व ने, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, I1 I2 I3, ठीक है। तो जी बजट लाइन है, दिस इज अ ब्लू लाइन इज अ बजट लाइन। तो फर्स्ट कंडीशन किया कि बजट लाइन दे जी आईसी कर्व और टेंजेंट होनी चाहिए, उन्होंने टच करती होनी चाहिए। कहते कि है नाल, ठीक है, टेंजेंट कट कर दी नहीं टच कर दी। तो इतने तुम देख सकते हो जी I1 कर्व है बजट लाइन को कट कर रही है, कट करके ये नीचे जा रही है। तो ये किया दिस इज नॉट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिथे I1 कट करी है। I2 किया, I2 इंडिफरेंस कर्व कहते बजट लाइन दे टेंजेंट है, स्पर्श करके जा रही है। तो जिथे कहते ब्लू लाइन अपनी I2 कर्व नु टच कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इत्थे कंज्यूमर जिहड़ा है वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन कर रहा है जिथे वो क्यू बाई क्वांटिटी ऑफ गुड बाई एंड ओ एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दी बाई कर रहा है। एंड जी I3 इंडिफरेंस कर्व है ये किया, ये अपनी बजट लाइन तो बाहर है, बजट लाइन तो बाहर है। दिस इज नॉट अटेनेबल पॉइंट, आप इनू अटेन नहीं कर सकते, इस इंडिफरेंस कर्व तक आप नहीं जा सकते क्योंकि मेरी सैलरी घट है, मैं अपनी बजट तो बाहर है, वो अपनी बजट तो ऊपर है, उन्हें सिर्फ आप एक्सपैक्ट ही कर सकते हैं। तो जी अपनी I1 कर्व है ये किया, अपने को आप गुड्स ज्यादा बाय कर सकते हैं, बजट अपना ज्यादा है लेकिन खरीद घट रहे हैं। तब कहते लेकिन I2 कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है, तब उत्थे किया आप अपने बजट का फुली यूज करते हैं जिहदे थ्रू आप डिफरेंट टू गुड्स एक्स एंड वाई को चूज करते हैं। तो कहते जिथे I2 अपनी ब्लू लाइन बजट लाइन को टच करेगी उत्थे कंज्यूमर्स किया इक्विलिब्रियम दी पोजीशन दे विच है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आप कह सकते हैं इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन with marginal rate of substitutions x for y equal to price of x divided by price of y। आगे किया सेकंड कंडीशन किया उपभोक्ता का संतुलन विच परिवर्तन। एक सेकंड किया इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो तुसी इत्थे देख सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व किया और ओरिजिन दे कन्वेक्स भी है, कन्वेक्स मींस लाइक दिस है, ठीक है।
कहते the other condition of equilibrium is that at the point of equilibrium indifference curve should be convex to the point of origin. It means marginal rate of substitution x for good y should be diminishing कि x ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ y ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਲਈ y ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਇਕਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ law of diminishing marginal utility ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਗੁੱਡ ਦੀ क्वांटिटी बढ़ती जाती है यूटिलिटी घटती जाती है जिसके करके पहला आप एक्स के लिए वाई के ज़्यादा इकाइयां छड्डण लई तैयार आ लेकिन हुण हौली हौली यूटिलिटी घटण के कारण आप एक्स दियां इकाइयां के बदले वाई दी घट इकाइयां छड्डण दे लई तैयार आ तद करके की जिहड़ी एक्स अपनी आईसी कर्व है बजट लाइन दे कन्वैक्स होनी चाहिए। नैक्सट है अपना उपभोक्ता के संतुलन दे विच परिवर्तन कहंदे उपभोक्ता के संतुलन दे विच परिवर्तन ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਆਈਸੀ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਟੂ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ two reasons ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ three reasons ਨੇ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ price effect substitution effect price effect and income effect these are the three effect ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ consumer equilibrium ਹੈ change ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ income effect ਕਿ income ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ consumer ਦਾ ਜਿਹੜਾ equilibrium ਉਹ ਕਿਵੇਂ change ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ income effect may be defined as the effect on the purchase of consumer caused by change in income क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम चेंज होती है तो कंज्यूमर की जी है परचेजिंग पावर वो चेंज होती है कहते जो इनकम इफैक्ट देखते हैं उत्थे कहते गुड्स का जो प्राइस है वो कॉन्सटेंट रहता ओनली इनकम चेंज होती है इनकम के चेंज होने के नाल अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो वो अफेक्ट करता कहते अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो बाकी चीज़ां जिहड़ियां जो कॉन्सटेंट सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होएगी अपनी जी इक्विलिब्रियम कर्व है वो क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आईसी कर्व ते बजट लाइन अगर कहते डिक्रीज इन इनकम है देन सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स डिक्रीज हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट डाउनवर्ड कहते हिज जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जेकर वस्तुओं की कीमत समान रहिंदियां हन पर उपभोक्ता की आमदन में परिवर्तन होता है तो वह वस्तुओं की घट मंग जब ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ कर सकता है और उसकी संतुष्टि पहला की बजाय घट भी सकती है बढ़ भी सकती है इनकम इंक्रीज होने के नाल सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी इनकम डिक्रीज होने के नाल सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी तो तुसीं देख सकते हो इस डायग्राम दे विच इनकम चेंज होने के नाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ते जो भी इफेक्ट पैंदा है कहंदे एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम दा ऑफ द कंज्यूमर दा हिज सैटिस्फैक्शन लेवल इज राइज ही इज विलिंग टू बी द हायर इंडिफरेंस कर्व ते वो पहुंच जाता है जदों दी सैटिस्फैक्शन की होंदी है हायर होंदी है क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सैटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सैटिस्फैक्शन तो तुसी इस दे विच देख सकते हो ठीक है इनिशियल अपनी बजट लाइन किया ए बी दिस इज द इनिशियल बजट लाइन हुण कहंदे किया कंज्यूमर इनिशियल बजट लाइन लिखिया ए बी ते उत्थे आईसी कर्व कहंदे ए बी दे किथे टेंजेंट है किथे टच करिए ई पॉइंट ते टच करिए दैट इज ई पॉइंट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट ओके एंड हुण क्या कंज्यूमर दी इक्विलिब्रियम इनकम है जी वो इंक्रीज होगी कंज्यूमर दी इनकम पहला 10,000 से 20,000 होगी तो कंज्यूमर का जो बजट है वो इंक्रीज हो गया तो बजट लाइन क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी न्यू बजट लाइन बनेगी न्यू बजट लाइन इज अ सी डी जी ए बी बजट लाइन दे पैरेलल बनेगी अपवर्ड बनेगी दिस इज द इंक्रीज इन बजट न्यू बजट लाइन इज अ सी डी तब कहते किया कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होएगी तो आईसी कर्व की अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हुन न्यू बजट लाइन पे ई 1 पॉइंट की टेंजेंट है आईसी कर्व 1 ठीक है उथे टच कर रही है तो हुन कंज्यूमर दा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया इक्विलिब्रियम ई तो इंक्रीज हो गया कितना हो गया ई 1 हो गया राइटवर्ड शिफ्ट हो गया दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जिदा रीजन किया इंक्रीज इन इनकम दे करके कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी जिदे करके
इंडिफरेंस कर्व हायर इंडिफरेंस कर्व बन गई, ठीक है, न्यू इंडिफरेंस कर्व न्यू बजट लाइन बनने के कारण। एंड उस तो बाद अगर इनकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਬਜਟ ਲਾइन बनी ए बी तो शिफ्ट होके ई एफ इज अ न्यू बजट लाइन जो कि शो कर रही है डिक्रीज इन इनकम विच शो कर रही है तो अपनी सैटिस्फैक्शन भी डिक्रीज हुई है IC2 कर्व बनी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी सैटिस्फैक्शन डिक्रीज होने नाल तो E2 पॉइंट इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो सानू की दस रहा है कि इनकम दे विच डिक्रीज होने नाल साडी जेहड़ी सैटिस्फैक्शन होगी की होगी डिक्रीज होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी डिक्रीज हो गया तो ठीक है E तो E1 increase in income and E तो E2 decrease in income, E तो E1 satisfaction gain and E तो E2 satisfaction down। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ E1 E2 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ICC ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਗੁਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਗੁਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ प्राइस इफैक्ट है जिहड़ा वो नैगेटिव हुंदा है नॉर्मल गुड्स के केस दे विच। नॉर्मल गुड्स के केस दे विच कहंदे जदों अपनी इनकम इंक्रीज हुंदी आ तां डिमांड इंक्रीज हुंदी है जदों इनकम डिक्रीज हुंदी है डिमांड डिक्रीज हुंदी है, ठीक है। इनकम ते जिहड़ी डिमांड कर्व है स्लोप्स अपवर्ड हुंदी है लेकिन जिहड़ी नैगेटिव नॉर्मल गुड्स के केस दे विच हुंदी आ प्राइस इफैक्ट दे विच कहंदे प्राइस जदों डिक्रीज हुंदा नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुंदी है जदों प्राइसेस इंक्रीज होता नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। एंड इंफीरियर गुड्स के केस दे विच कहंदे इनकम इफैक्ट पॉजिटिव होता मींस इनकम बढ़न दे नाल इंफीरियर गुड्स दी नैगेटिव होता। इंफीरियर घटी किस्म के गुड्स ने तां उन्हां दे केस दे विच इनकम एंड प्राइस इफैक्ट देने की होता नैगेटिव होता। इनकम इंक्रीज होने दे नाल डिमांड घटेगी इनकम डिक्रीज होने दे नाल डिमांड ਵਧੇਗੀ, ठीक है। एंड प्राइस घटने के नाल डिमांड ਵਧੇਗੀ प्राइस ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ डिमांड घटेगी। एंड गिवन गुड्स के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ICC ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ the income consumption curve is that curve which represent the equilibrium quantities of good X and Y that would be purchased at various level of income which prices remains the constant। In short, income consumption curve refer to the effect of changing in income on the equilibrium of the consumers। कहते ICC curve सानू दस दिया कि कंज्यूमर ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ICC ਕਰਵ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ मतलब इनकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ IC1 ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ICC1 ਐਂਡ ICC2 ਇਹ 3 ਕਰਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪਸ ਕੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਵਾਲੀ ICC1 ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ X ਗੁੱਡ ਐਂਡ Y ਗੁੱਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ICC2 ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि इनकम इंक्रीज होने दे नाल असी एक्स कमोडिटी दी जिहड़ी है कंजम्पशन घटा रहे हैं लेकिन बाई गुड दी कंजम्पशन ज़्यादा है एक्स गुड के कंपैरिजन। एंड जिहड़ी ICC1 कर्व है, ठीक है, एक ही इहदी इलास्टिसिटी जिहड़ी ये ज़्यादा है तो एक ही शो करिए कि इनकम ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक्स गुड ਨੂੰ ज़्यादा परचेज कर रहे हैं एज ए कंपैरिजन वाई गुड मीनस वाई गुड की
कंजम्पशन दे नालों एक्स गुड की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है एंड वाई गुड की घट हो रही है। ICC 1 कर्व है जी सानू ये शो कर रही है। जी डिफरेंट क्वांटिटीज ने उन्होंने चेंज शो कर रही है इनकम के चेंज होने। ICC के कर्व से इक्वल चेंज तो उन्होंने क्वांटिटी इंक्रीज एंड ICC 1 से एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज एंड ICC 2 से वाई की क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज। एंड उस तो बाद जी अपनी ICC कर्व है नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है। स्लोप ऑफ इनकम कर्व इज नेगेटिव इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। कहते इंफीरियर गुड्स के केस के विच जी अपनी ICC कर्व है दी स्लोप की होगी नेगेटिव होगी। हुण ICC कर्व सानू किस चीज़ में मिला के बनती है डिफरेंट जड़ियाँ IC कर्व्स ने ते अपने बजट लाइन के पॉइंट्स से टेंजेंट हो रहे हैं कट हो रहे हैं जिते इक्विलिब्रियम पॉइंट है डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिला के अपनी की बनती है ICC कर्व बनती है। हुण इंफीरियर गुड्स ते अपनी जी कंजम्पशन है इंफीरियर गुड्स से इनकम अफेक्ट की होंदा नेगेटिव होंदा। इनकम वधन दे नाल इंफीरियर गुड्स की डिमांड की घटती है इनकम घटन दे नाल इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। हुण तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो इनिशियल जी अपनी बजट लाइन है वो की है CD है। CD इज द इनिशियल बजट लाइन जो IC 2 पॉइंट ते कट कर रही है। E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जिथे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दे विच है। हुण कहते जो अपनी इनकम इंक्रीज होगी तो अपनी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी। GH इज अ न्यू अपनी है बजट लाइन तो जी बजट लाइन इंक्रीज होगी लेकिन अपनी कंजम्पशन डिक्रीज होगी। कंजम्पशन ये जी कमोडिटी बाई है दिस इज द नॉर्मल गुड एंड कमोडिटी एक्स की है दिस इज द इंफीरियर गुड। तो तुम देख सकते हो कि अपना जो बजट लाइन इंक्रीज होगी तो IC3 कर्व लैफ्ट साइड शिफ्ट हुई है। तो वो दस रही है कि जी अपनी इंफीरियर गुड है कमोडिटी एक्स है वो क्वांटिटी जी E1 पॉइंट अपनी M1 सी वो कट के कितनी होगी M2 होगी। तो जी वाई गुड है वो क्वांटिटी E1 पॉइंट जितने इक्विलिब्रियम है पहला N1 सी वो हुण वध के कितनी होगी N2 होगी। मतलब वाई गुड की जी है डिमांड वधी कंजम्पशन वधी एक्स गुड की जी कंजम्पशन है घटी क्योंकि वाई गुड नॉर्मल गुड है वो पॉजिटिव इफेक्ट है इनकम का एंड एक्स गुड से नैगेटिव है। तो उस तो बाद E2 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि शो कर रहा है कि एक्स की डिमांड घटी एंड वाई की डिमांड वधी। एंड उस तो बाद जो इनकम घट गई तो बजट लाइन नीचे वर्ड शिफ्ट होगी। AB इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट ठीक है। तो IC1 न्यू कर्व बनी जिथे A1 इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक ही शो कर रहा है कि वो इनकम घटन दे नाल की इंफीरियर गुड की डिमांड वध गई वो M1 तो वध के वो M होगी। तो जी नॉर्मल गुड की डिमांड घट गई वो N1 तो घट के की होगी वो M होगी। तो इतने पॉजिटिव से नैगेटिव इफेक्ट शो हो रहा है इंफीरियर गुड के नाल नैगेटिव एंड नॉर्मल गुड्स के नाल पॉजिटिव ठीक है। तब की ये 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला के IC कर्व मेरी की बन रही है लेफ्ट राइट डाउनवर्ड बन रही है। दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स कि इंफीरियर गुड्स के केस दे विच जी IC कर्व की होगी उसकी स्लोप लेफ्ट राइट डाउनवर्ड होगी क्योंकि जिमें जिमें इनकम बढ़ेगी आप उसका यूज घटाते जावांगे। नैक्सट इज द सबस्टिट्यूशन इफेक्ट। सबस्टिट्यूशन इफेक्ट की होंदा सबस्टिट्यूशन दे विच की होंदा आप एक्स की जगह ते वाई गुड नु यूज कर सकते हैं वाई दी गुड एक्स गुड यूज कर सकते हैं। कहते केवल सपेखक कीमतां विच परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु के भोग विच परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है जो कि उपभोक्ता की वास्तविक आमदन स्थिर रहती है। इत्थे कहते इनकम तो स्थिर रहती है इनकम के विच कोई चेंज नहीं गा लेकिन गुड्स की सबस्टिट्यूशन से विच चेंज है। कहते जो कि अपने गुड्स की कंपैरिजन एक्स गुड की बजाय वाई गुड की प्राइसिस इंक्रीज हो जाती है या एक्स की प्राइसिस डिक्रीज हो जाती है। एंड सबस्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू चेंज इन देयर रिलेटिव प्राइस अलोन। जो एक्स ते वाई गुड्स के विचों सिर्फ एक गुड की प्राइसिस इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है तो सबस्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलता। आप फिर एक्स गुड की बजाय वाई गुड या वाई की जगह एक्स गुड जी सस्ती हो जाती है वह ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देने। कहते हिल रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर remains constant if the change in the price of the goods of the money income of the consumer changes in such a way his real income remains constant। इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਐਪਲ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਆ OX ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ OY ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ AB इज द इनिशियल बजट लाइन ठीक है जिन्हों IC1 कितने टच कर रही है F पॉइंट पे टच कर रही है
एफ पॉइंट ते टच कर ई पॉइंट ते टच कर रही है अपनी जी IC1 कर्व है, ई पॉइंट ते टच करिए तो ई पॉइंट ते कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम दे विच है वो ON क्वांटिस ऑरेंज दिया लै रहा ते OM क्वांटिस किदिया लै रहा एप्पल दिया लै रहा। ठीक है, कहते हुण की हो जाता एप्पल दी प्राइसिस है जी डिक्रीज हो जाती है। तो एप्पल की प्राइसिस पहला जी 4 सी वो 4 तो जो मतलब एप्पल की प्राइसिस पहला 1 रुपीज़ सी हुण की होगी 0.50 होगी। ठीक है, हुण आप डबल एप्पल बाय कर सकते हैं। तो कि पहला मैं जेडे एप्पल ते ऑरेंज 3 रुपीज़ दे लै रहा सी, हुण मैं वो कहते अपने प्राइसिस डिक्रीज होने दे करके मेरी रियल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, 4 होगी तो मैं एप्पल दी जड़ियां है क्वांटिटीज ज़्यादा लै सकता। तो एप्पल की प्राइसिस डिक्रीज होने के नाल मेरी बजट लाइन एप्पल वाली साइड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ए बी तो शिफ्ट होकर की होगी AC होगी। AC इज द न्यू जड़ा है अपना बजट लाइन। तो इतने IC2 कर्व है जी वो D पॉइंट ते अपनी न्यू बजट लाइन कट कर रही है AC नू। तो D पॉइंट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो हुण कहते D पॉइंट ते इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहते हुण कहते जी मैं मेरी रियल इनकम इंक्रीज हुई एप्पल दे प्राइस की घटन की बजाय। हुण कहते मेरी की मैं सेम क्वांटिटीज ओनियां ही बाय करा। अगर कहते मैं सेम क्वांटिटीज ओनियां ही बाय करा रियल इनकम मेरी 3 to 4 होगी क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए। पहला एप्पल के मेरे 4 रुपए लगते थे, 2 रुपए लगते रहे, मीन 1 रुपया मैं सेव कर लिया। तो 1 रुपया मतलब मैं फिर पहला 1 रुपया मैं अलग तो रख देवां, मतलब ओनियां ही क्वांटिटीज बाय करा। तो मैं 3 रुपीज़ दे विच ही अपना एप्पल एंड ऑरेंज की क्वांटिटीज बाय करा तो मेरे बजट लाइन उत्थे ही बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 ते तो GH इज द न्यू बजट लाइन। तो वो F पॉइंट IC1 कर्व नू कट करेगी। ठीक है, तो F पॉइंट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहते जिथे मैं OP क्वांटिटीज ऑरेंज दियां एंड OQ क्वांटिटीज की ने जी एप्पल दियां बाय कर रहा। तो एक की जरा अपना उही आप सेम IC कर्व ते आ गए, अपनी सैटिस्फैक्शन सेम है। अपन 1 रुपया बचा भी लिता क्योंकि एप्पल के प्राइसिस दे विच इंक्रीज होने दे नाल जो मैं अपने 4 रुपए दे विच 8 एप्पल हुण लै सकदा सी। पहला जो मैं 4 एप्पल लैंदा सी, हुण की कहंदे मैं 1 रुपया ही सेव किया, अपना पुराना बजट ही लगाया गुड्स की क्वांटिटीज नू बाय करन दे विच। तो EF इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स मींस किया पहला मैं E तो D पॉइंट ते गया, तो D तो बाद मैं सेम F पॉइंट ते आ गया, उसे IC कर्व ते आ गया। तो अपने मैं मनी सेव की तो वही क्वांटिटीज दे थ्रू अपने आप को सैटिस्फाई किया उन्नी ही मनी विच। ठीक है, क्योंकि एप्पल की क्वांटिटीज मैंने ज़्यादा मिलियां। ठीक है, तो एप्पल की क्वांटिटीज दे विच इंक्रीज OM to MQ। ठीक है, एंड ऑरेंज दे विच डिक्रीज ON to OP। तो मैं ऑरेंज की जगह पे एप्पल की क्वांटिटीज को ज़्यादा बाय किया क्योंकि एप्पल सस्ते सी। तो EF इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की E तो मैं F पॉइंट पे आ गए। तो E तो F क्वांटिटी जी MQ क्वांटिटी की शो कर रही है। MQ एप्पल दे विच इंक्रीज एंड NP डिक्रीज अपने ऑरेंज क्वांटिटी। लेकिन सैटिस्फैक्शन पहले दी हुई IC1 कर्व पे ही मैंने सैटिस्फैक्शन मिल रही है। दिस इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एंड नैक्सट इज अ प्राइस इफेक्ट। कहते कीमत प्रभाव तो स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की आमदन और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने से दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के कारण दोनों वस्तुओं के उपभोग में परिवर्तन होने के कारण उपभोग संतुलन पर की प्रभाव पैदा है। कहते प्राइस इफेक्ट की है price effect means change in consumption of goods when the price of either of the two goods change till the price of the other goods and the income of the consumer remains constant। देख सकते हो तुसीं कीमत उपभोक्ता दा जिहड़ा झुकाव हुंदा है थल्ले वल हुंदा है। दिस इज अ PPC अपनी जिहड़ी है प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो ये कहते प्राइस दिखाया हुआ है प्राइस एक्सपोर्ट के प्राइस के डिक्रीज होने एक्सपोर्ट की जी कंजम्पशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्सपोर्ट की जी कंजम्पशन इंक्रीज होने बाई गुड की जी अपनी है डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। जिवें कि तुसीं इसदे विच देख सकते हो कि एक्सपोर्ट की प्राइस के डिक्रीज होने आप एक्सपोर्ट की ज़्यादा क्वांटिटीज लवांगे, बाई गुड की क्वांटिटीज घटावांगे, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, वो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को बना के अपनी जी प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो बनेगी जिसके थ्रू आप प्राइस के चेंज होने कंजम्पशन के इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इतने देख सकते हैं अपनी जी PM है दिस इज द इनिशियल बजट लाइन। ठीक है, तो गुड X है तो गुड Y है। तो E1 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जिथे कहते IC1 कर्व अपनी PM बजट लाइन टच कर रही है। तो इतने ON क्वांटिटीज आप गुड Y दियां लै रहे हैं, OM1 क्वांटिटीज आप गुड X दियां लै रहे हैं। हुण X गुड की प्राइसिस दे विच डिक्रीज होया तो आप X गुड दियां ज़्यादा क्वांटिटीज लै सकते हैं। तब क्या इंक्रीज है एक्सपोर्ट के प्राइसिस दे विच इंक्रीज हो गया तो एक्सपोर्ट दियां मैं घट इकाइयां लै सकदा। ठीक है, तो इत्थे की हो जाएगी जी बजट लाइन है वो मेरी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। न्यू बजट लाइन L1 तो शिफ्ट होके PL बनेगी। IC जो न्यू इंडिफरेंस कर्व है E पॉइंट से कट करेगी, E1
पॉइंट इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते जो कि शो कर रहा है कि वाई गुड की क्वांटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्रीज एंड एक्स गुड की क्वांटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ डिक्रीज क्योंकि एक्स गुड की प्राइस है ਜਿਹੜੀ ਉਹ इंक्रीज हुई है ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ प्राइस एक्स गुड ਦੀ इंक्रीज ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ एक्स गुड की क्वांटिटी ਵਧੇਗੀ वाई ਦੀ ਘਟੇਗੀ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ਤੇ एक्स गुड की प्राइस इंक्रीज होने ਨਾਲ एक्स गुड की डिमांड घटेगी वाई गुड की डिमांड ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ने E1 E2 एंड E ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ प्राइस कंजम्पशन कर्व शो बनेगी जो ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ प्राइस एंड कंजम्पशन ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ एक्स गुड ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ कंजम्पशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंड उपर उठती ढलान वाला कीमत उपभोग कहते जी अपनी इतने किया जी अपनी प्राइस कंजम्पशन कर्व है पॉजिटिव है टू गुड्स के केस दे विच ये सानू ये दस रही है कि इत्थे दोने गुड्स की जी है क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है पहला मान लो दोने गुड्स की प्राइसिस दे विच इंक्रीज डिक्रीज शो कर रही है पहला जी अपनी प्राइस लाइन है PL1 है बजट लाइन दिस इज अ ठीक है E1 इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जिथे IC1 कर्व टच कर रही है ओ एन क्वांटिटीज गुड Y दियां ओ M1 क्वांटिटीज गुड X दियां खरीद रहे हैं मान लो कि X एंड Y दोने गुड्स की प्राइसिस डिक्रीज होईयां ने तद किया न्यू बजट X गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तो इत्थे किया अपने बजट लाइन शिफ्ट करके PL1 तो PL2 होगी एंड IC2 कर्व टेंजेंट है E2 पॉइंट इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो सानू शो कर रहा है इंक्रीज इन Y गुड एंड इंक्रीज इन X गुड कि दोनों गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है कि जी साडी मनी सेव हुई है गुड X की प्राइस डिक्रीज होने नाल हुण असीं Y ते भी लगा रहे हैं X ते भी लगा रहे हैं अगर X गुड की प्राइसिस इंक्रीज तो अपनी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट PL ठीक है एंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E तो IC कर्व ते टच करिए जिथे तो ये क्वांटिटी शो करिए कि प्राइसिस एक्स गुड की इंक्रीज होने नाल एक्स गुड की कंजम्पशन भी घटी है एंड वाई गुड की कंजम्पशन भी घटी है तो इत्थे साडा की है PCC कर्व की है पॉजिटिव है लेफ्ट राइट अपवर्ड है जो सानू पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस ते कंजम्पशन दे विच एंड इत्थे क्या नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व कहते जेड़ा इंडिफरेंस कर्व है ओदी इंपॉर्टेंस है उपभोक्ता विच महत्वता है उपभोग विच महत्ता इदा है कि जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता टू गुड्स की सिलेक्शन इस तरह करता कि वो जी मैक्सीमम आ टू गुड्स तो उन्हें सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले ठीक है उन्हें यूटिलिटी ज़्यादा मिले नैक्सट इज उत्पादन के खेत्र के महत्व कहते जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया जाता कैपिटल एंड लेबर्स कहते जो उन्होंने कंपैरिजन किया जाता तो यह देखा जाता है कि किस के थ्रू सानू जी सैटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा गेन हो रही है वटांदरे दे विच महत्व जो एक्सचेंज करनी है गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई दे विच उन्हां दी सैटिस्फैक्शन भी इस द्वारा ही चैक की जाती है ताकि उन्होंने एक्सचेंज किया जाता वैल्यू के थ्रू आर्थिक सहायता कहते इकनॉमिक वैलफेयर के विच भी ये जो लॉ है इंपॉर्टेंट है सूचक अंकां की समस्या जो कहते अंकड़े वगैरह आपने देखने ने तद भी ये अपलाई होंगे है प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष कर कहते डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस के विच इस इंपॉर्टेंट की इस लॉ की इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके थ्रू पता लगता है कि सानू इनडायरैक्ट टैक्सिस तो इलावा जेडे है डायरैक्ट टैक्सिस उन्होंने तो ज़्यादा बेनिफिट है एंड उस तो बाद है कित की पूर्ति कहते जो वेजिस ने अपने लेबर दी फिक्स की जाती हैं वो भी इस लॉ के थ्रू ही फिक्स की जाती है कंपैरिजन किया जाता है कि किन्ने तक जी है अपनी कंज्यूमर वेजिस लेबर वेजिस प्रोवाइड किए जाए एंड कीमत प्रभाव जो है प्राइस इफैक्ट उन्होंने भी देखा जाता है कि प्राइसिस के चेंज होने कंजम्पशन के कितना चेंज होता है नैक्सट उपभोक्ता का संतुलन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਅ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੇ उपभोक्ता की बचत का माप कहते कंज्यूमर सरप्लस कहते वो भी इस लॉ ते ही डिपेंड है कि कंज्यूमर्स को सरप्लस होएगा वो जो प्राइस पे कर रहे हैं वो कोई सैटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं आलोचनावां ने कहते ये जो लॉ है ये सैटिस्फाई नहीं करता नवी बोतल में पुरानी शराब की तरह है कि आप वही सेम जो पुराना मैथड है यूज कर रहे हैं वास्तविक मानतावां ते आधारित है दो वस्तु मॉडल है कहते रियल मॉडल नहीं है एक्चुअल सच्चाई नहीं दसता दो गुड्स के केस आप सिर्फ इन्हों अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कंज्यूमर सिर्फ दो गुड्स नहीं बाय करता वो मोर दैन टू गुड्स बाय करता अपनी डेली लाइफ सारी मुद्रा दो वस्तुओं पर खर्च करने की मानता में आधारित है जी गलत है उपभोक्ता के विवेकपूर्ण विभाग की मानता की रैशनल है वो सिर्फ सैटिस्फैक्शन चाहता है कहते भी टोटली रॉन्ग है व्यक्तिगत व्याख्या की जाती है तो निरंतरता की घाट है ये अज्ञानता पर आधारित है सच्चाई की जांच की संभावना नहीं है
ਘਰ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।